ऑल राइट, ऑडियो ऑन स्टेज, ठीक है। प्लीज कंफर्म, क्या सबको ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस ठीक है। और कोई मुझे देख के बता सकता है sir. क्या कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, यस आई कैन सी। ठीक है, तो आप लोग को जो आपकी स्क्रीन है वहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम WP1 करके आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना? So now what I will do is I will read the question and you guys just listen to the question carefully. जो important stuff है वो आप question से note कीजिए and then solve the question. What we will do is we will try to solve at least 5 to 6 questions minimum. उससे ज्यादा कर पाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने questions तो करेंगे। चलो note करो first question. Please note down first question. ठीक है, the others those who are coming they will keep on coming. Please note down first question because there are some 20 students less today. 20 some 30 students less as of now. So please note down first question. The sum of squares of two consecutive natural numbers. The sum of squares of two consecutive natural numbers is 313. किसका स्क्वायर भाई? सर ने बोला कि किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ टू consecutive natural number, square of two consecutive natural number, sum of, है ना, sum of square of two consecutive natural numbers is 313. So you have to tell what are the numbers. What are the numbers? Those who have joined late, for them I'm repeating the question. The sum of squares of two consecutive natural, हाँ जी Sir, if I leave, don't think that I left purposely because my network connection is very poor today. No issue dear, I can understand this. In fact, I was also about to say this. In case मैं बैठे बैठे गायब हो जाता हूँ, डोंट थिंक दैट आई लेफ्ट पर्पसफुली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कब यहाँ से पावर फेलियर हो जाए, ठीक है ना? टुडे है ना, टुडे एवरीथिंग इज चलेबल, आज सब कुछ चलेगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम डियर। देखो 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे ऑलरेडी सिंसियरिटी एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप या कोई भी और अगर क्लास से चला जाता है ऑल ऑफ अ सडन, तो आई वोंट से दैट यू लेफ्ट पर्पसफुली। मैं यही बोलूंगा कि डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम रही होगी उसके एंड पे। लेकिन ये बात मैं 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ नहीं कह सकता, बिकॉज दे आर नॉट दैट सिंसियर। बट आप लोग सिंसियर हो यार। आज से 50 साल पहले, आज से 40 साल पहले आपकी उम्र के लोग ना जॉब करते थे, ठीक है? तो आप लोग सिंसियर हो, तो आई हैव नो डाउट इन योर सिंसियरिटी फॉर ऑल ऑफ यू. दिस स्टेटमेंट इज फॉर ऑल ऑफ यू. सो नाउ प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन. Sum of square of two consecutive natural numbers is 313. Now you have to tell me what are the numbers. Now this is a very interesting question, because why this is an interesting question? Okay. अभी हो गई ना? ठीक है, अब हो रही है. Chalo. The question is, again I will just repeat the question. The sum of square of two consecutive natural numbers is 313. So what are the numbers? Fine. So finally मुझे numbers मिलने लगे. Almost everybody is giving me the correct answer, but problem ये है कि लोग दो pair of numbers दे रहे हैं. दो pair of numbers तो नहीं होंगे बेटा. आस्था, जो आपने आंसर दिया है, देखो
now I will say that what आप लोगों ने आंसर दिया, because everybody is able to solve the question. आप लोग का जो आंसर आ रहा है, एक आप लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x square plus x plus 1 whole square will be equal to 313. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी x will be equal to +12 और एक वैल्यू मिलेगी -13. तो अगर आप +12 लेते हो तो आपको नंबर्स मिलेंगे +12 एंड +13, और अगर आप -13 कंसिडर कर रहे हो तो आपको नंबर मिलेंगे -13 एंड -12. Now my question is, which number will you take? Which pair will you take? What Sir. answer will you write? एक मिनट बेटा, एक मिनट. Sir, First let me complete my question, please. Which answer will you write? Are the numbers +12 and +13, or are the numbers -13 and -12? Or you will write there are two pairs of number. The first pair is +12 and +13, and the second pair is -13 and -12. What answer are you going to give in your board exam? Sir, हाँ, बोलिए. sir, 12 and 13. 12 and 13. Why not -12 and -13? Sir, Because it is given the natural question is numbers. asking natural numbers. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए, आप में से कुछ लोगों ने आंसर दिया +12 एंड +13. नो डाउट, एकदम करेक्ट आंसर था, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल गिव देम 5 out of 5. 5 out of 5. लेकिन कुछ लोगों ने आंसर दिया सर -13 एंड -12 भी होगा आंसर. आई विल गिव देम 1 mark. Why I will give them 1 mark? The reason for that is, बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural numbers. यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है. We are not talking about integers. Read the question carefully. इसीलिए जब मैं उस दिन आप लोगों को, जब मैं कल आप लोगों से एल्गोरिदम डिस्कस कर रहा था of solving this type of word problem. एक मिनट. Then I told you that you have to read the question very carefully and then you will have to reject one value. ठीक है. तो इस इक्वेशन का जो रूट्स आएंगे ना, ये जो इक्वेशन आपकी बनी है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 313, इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे. एक आएगा +12 और एक आएगा -13. वहां तक बात ठीक है, वहां तक सब करेंगे. बट उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगी. क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट होगी? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है नेचुरल नंबर. सो यू विल कंसीडर ओनली दिस +12. जब आप +12 लोगे, एक नंबर आपका +12 हो गया, दूसरा नंबर आपका +13 हो जाएगा. अब आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप. Sir, in this question, if natural, it was not specified that it is natural number, then the answer will be? In that case, you will have two pair of numbers. अगर इंटीजर्स लिखा होता या रेशनल नंबर लिखा होता या कोई भी नंबर लिखा होता एक्सेप्ट नेचुरल नंबर, उस केस में आपके दो पेयर ऑफ आंसर्स होते. पहला आंसर होता आपका 12 and 13 और दूसरा आपका आंसर होता -13 and -12. क्योंकि देखो बेटा, इन दोनों को स्क्वायर करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट 313, और इन दोनों को स्क्वायर करोगे तब भी तो 313 ही मिलेगा ना. लेकिन द डिफरेंस इज द वर्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं. इफ somebody wants to ask something, सर नहीं समझ में आया या कुछ भी, तो पूछ लीजिए. देन अगला क्वेश्चन करते हैं. और घबराने का नहीं, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अब सोच भी नहीं सकते मेरे पास उतने क्वेश्चंस हैं. ठीक है, चलो नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? पक्का श्योर? शैल आई मूव, कैन आई मूव अहेड? Yes, sir. ओके. अच्छा, आप लोग इंग्लिश तो पढ़ते हो ना एक सारे लोग. एक बात बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट टर्म? शैल आई मूव अहेड और कैन आई मूव अहेड? अरे इंग्लिश की क्लास नहीं लूंगा यार मैं, इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा. इंग्लिश शैल आई मूव अहेड? पक्का?
Here I'm not going to confuse sir. you because here I am also not knowing. क्योंकि यार देखो मुझे जहां तक लगता है कि I के साथ तो shall use होता है. I think shall I move ahead should be the right word. But अगर किसी को कोई सर हाँ बोलिए. सर कैन होगा सर, क्योंकि हम आपसे छोटे हैं तो आप हमको मतलब कैन बोलेंगे, शैल नहीं बोलेंगे। अब यार ये ग्रामर में बड़ा छोटा कहाँ से आ गया बेटा? See, I don't know. I know maths. मैं वो चीजें नहीं जानता हूँ. ठीक है, maybe you are correct. ठीक है, चलो नोट करो, एक क्वेश्चन और नोट करो. टफ क्वेश्चन दूं या थोड़ा सा आसान दूं? कम ऑन, टफ दूं? चलो टफ नोट करो. एक आसान कर लो, फिर एक टफ नोट कर लेंगे. A two-digit number is such that product of its digit is 18. A two-digit number is such that product of its digit is 18. Full stop. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their place. You have to tell what is the... So the product was 18 or 80? 18, 18. I'm again repeating the question. A two-digit number is such that the product of its digit is 18, full stop. Now, when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their place. Full stop. Find the number. I guess ऐसा ही एक क्वेश्चन था जिसपे अपन फर्स्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे जब टाइम ओवर हो गया था. आज इस क्वेश्चन पे फिर से डिस्कस करते हैं. ओह वाओ, सीरियसली यार आप लोग बहुत अच्छे हो. सर सर अगर ऐसे क्वेश्चन हमको मतलब एनटीएस या किसी एमसीक्यू बेस में आए तो फिर ऑप्शंस में ही देखना ज्यादा अच्छा रहता है. यस. अगर देखो मेरे से किसी ने क्लास में पूछा था, आई वाज टीचिंग समवेयर, तो ऐसी कुछ एनटीएससी की कोई क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर रहे थे. आई सॉल्व द क्वेश्चन बाय टेकिंग द ऑप्शंस. तो दैट गाय स्टूड अप एंड ही टोल्ड मी कि सर आप जो है ऑप्शन से कर रहे हैं, आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं. मैंने बोला ठीक है कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? What is problem if I am solving the question by hit and try? आपका एम क्या है ये बताओ. आपका एम क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क्स लेना है या आपका एम एग्जामिनर के पास रफ शीट भेजना है जहां आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? आपको पता है वो जो रफ शीट्स होती है ना जिसपे आप लोग सॉल्व करते हो क्वेश्चंस, वो रफ शीट बाद में पान की दुकान पे या चाय की दुकान पे चाय और समोसे खाने के काम आती है. They don't even bother what you have done in that question, what you have done in that paper. तो इसीलिए जैसा देश वैसा भेष. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है तो योर आइडिया शुड बी यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 30 seconds and get the marks and proceed ahead. That's it, बात खत्म. आपको उस समय वहां पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. Let the number is X. Then according to the question it will be, its other digit will be this. I guess most of you are getting the answer. So shall I solve? Is it required to solve the question or shall I move ahead? चलो देख लेते हैं कुछ, क्योंकि then ईशान will say कि सर आपने मेरे डाउट को डिस्कस नहीं किया. आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है सर? आज है कि नहीं? ईशान, आर यू इन द क्लास? इहान, ईशान, जो भी नाम है आपका, आर यू इन द क्लास? नहीं है शायद आज. चलो मीत, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू वांट टू आस्क समथिंग? मीत? No, sir. Okay, fine. If you want to ask something, then you can directly ask. Voice is cracking. I'll try to speak more loudly, but I can't say anything
I can't commit anything because आज तो भाई गड़बड़ है, आज तो भाई गड़बड़ है। चलो देखो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ने बोला था एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है जिसमें कि डिजिट्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 18. Fine. Now when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their place. तो अपन क्या करते हैं, let ones place को x मान लेते हैं, so tens place will be 18 upon x. So my initially my number will be 10 into 18 plus x plus x. ठीक है, अब इस नंबर से जब मैं 63 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, my digits interchange, that is my new number becomes 10x plus 18 upon x. ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, इस 63 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भेज देंगे और ये 10x plus 18 upon x है, इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले आएंगे. So this will be 180 upon x minus 18 upon x plus x minus 10x will be equal to 63. Now what I will do, अरे रे 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 ये क्या हो गया, वेट करो यार एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसके बाद, देखो अब जब मैं 180 में से 18 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल हैव 162 अपॉन x माइनस 9x विल बी इक्वल टू 63. मेरे को दिख रहा है कि ये तीनों चीजें जो है 9 से कैंसिल हो रही हैं, तो कैंसिल कर दो इसको. जब मैं इसको 9 से कैंसिल करूंगा सो इट विल बी 18, क्योंकि 18 9 जा 72 होता है एंड इट विल बी 7. सो माय फाइनली माय इक्वेशन विल बी 18 अपॉन x माइनस x विल बी इक्वल टू 7. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं भाई, कैसे क्या सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो. 18 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7x, ट्रांसपोज कर दो, x स्क्वायर प्लस 7x minus 18 will be equal to 0. So there will be two values of x, x square plus 9x minus 2x minus 18 will be equal to 0. x को कॉमन ले लो, x plus 9 minus 2 को कॉमन ले लो, x plus 9 will be equal to 0. So x will be equal to 2, 9. तो जब x 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, -9 नहीं हाँ सॉरी, -2 एंड +2 एंड -9. तो अगर x 2 है, एक डिजिट अगर 2 आ गई तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी 9. वन डिजिट इज 2, अदर डिजिट इज 9. अब नंबर देख लो, नंबर क्या आ रहा है यहाँ से, नंबर जो है, नंबर यहाँ से क्या आएगा 29. ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आई थी तो x was my ones place. देखो x was my ones place digit, इसकी वैल्यू 2 आई है तो 18 अपॉन x की वैल्यू 9 हो जाएगी. सो माय नंबर विल बी इक्वल टू 92. इनिशियली माय नंबर वाज 92. उसके बाद जब मैं इसमें से 63 को सब्ट्रैक्ट करूंगा सो माय न्यू नंबर बिकम्स 29. ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था. ये तब करना था जब ये क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर में, या ये क्वेश्चन जब आपको 4 नंबर में या 5 नंबर में आए. ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर में आता है तो जो आपको करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है, अगर 1 नंबर में आता है तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ. 4 नंबर में आता है तो क्या करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ. एंड किसी ने मुझे पूछा कि सर क्या अभी आप हम लोग को पढ़ाएंगे, तो फिलहाल तो बेटा मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को. I don't know in future what will happen, but most likely आपके पूरे सेशन में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, मोस्ट लाइकली आपके पूरे सेशन में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा. मोस्ट लाइकली मैंने इसलिए बोला क्योंकि यार बैठे बैठे कुछ भी हो जाता है लाइफ में. मैं आपसे क्या, मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत दुखी रहते हैं कि why I talk like that, but
जो रियलिटी है वो रियलिटी है, तो इसीलिए मोस्ट लाइकली आई विल ओनली टीच यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो गया, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कैन आई इरेज इट? कैन आई इरेज इट? Sir. ओके, शैल आई मूव, नहीं शैल आई नहीं, क्या था? कैन आई मूव अहेड? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके ओके, फाइन 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 फाइन, ठीक है। अगर मैंने ग्रामेटिकली गलत भी बोला तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, बट आप लोग ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अब सुनो, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। ठीक, आप लोग भी नोट करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1/4, एक एक ऊंटों का झुंड था, ठीक है, उस झुंड में से 1/4 ऑफ हर्ड, हर्ड मतलब हो गया आपका ऊंटों के झुंड को शायद बोलते होंगे, 1/4 ऑफ हर्ड वाज सीन इन फॉरेस्ट। अब मुझे तो इस क्वेश्चन में यही नहीं समझ में आता कि ऊंट फॉरेस्ट में क्या करते हैं, लेकिन चलो जो बोल रहा है वो सुन लो। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड had gone to mountain, 2 into square root of herd had gone to mountain, mountain। पहले लिख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है। एंड द रिमेनिंग 15 वेयर सीन ऑन द बैंक, जो बाद के 15 बच्चे वेयर सीन ऑन द बैंक। तो आपको बताना है टोटल कितने थे। अब एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। 1/4 of a herd of camel was seen in forest. Twice the square root of herd had gone to mountain, and the remaining 15 were seen on the bank. Find the total number of camels in the herd. अब देखो एक बात आपको बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपके पास, अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो इट विल टेक टाइम। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा और अगर आप वैल्यूज लेके करोगे, देन इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली। ठीक है, चलो करो। और हमारे सिस्टम की ब्यूटी क्या है पता है आप लोग को? अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए होते? 19, ठीक है, 29 से 27 एंड 25। अब यहां से अगर आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। पूछो कैसे? इन्होंने ये बोला कि ट्वाइस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन। अब ये जो तीनों नंबर्स है ना, इन तीनों नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो बेटा कैमल जो है वो इरेशनल नंबर में तो नहीं होगा ना, होगा तो वो रेशनल नंबर में ही। समझ में आया? कैमल जो होगा वो इरेशनल नंबर में तो नहीं होगा। तो अगर इस टाइप के ऑप्शंस दिए होंगे तो आप तीन ऑप्शंस को तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स। लेकिन थोड़ा सा आपको वहां पे दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा कि क्यों मैंने बाकी तीनों ऑप्शंस को रिजेक्ट किए, क्यों मैंने चौथे ऑप्शन को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो।
नो आंसर अभी तक? क्या हुआ भाई? लड़के टाइम लगा रहे हैं, मतलब ये लड़के मेरे को फंसाएंगे इस क्वेश्चन में. आई हैव टू बी बेटर, आई शुड बी केयरफुल. ओके, आई नो दीज गाइज विल ट्राई टू प्लानिंग कभी नहीं करनी चाहिए यार. मैंने प्लानिंग किया था, मैंने नोट्स बनाए थे कि आप लोगों के पास आऊंगा तो आप लोगों को नोट्स दूंगा अपने. कई कई सारे क्वेश्चंस का, अच्छे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन करके रखा था कि आई विल बी विजिटिंग केडीएवी एंड जामनगर सेंटर पे, तो बच्चे आएंगे तो मैंने ये सोच के रखा था कि आप लोगों को नोट्स दूंगा. बट प्लानिंग तो कभी भी सक्सेसफुल होती ही नहीं है. इसलिए दिस पेंडेमिक हैज टीच्ड मी पर्सनली, इसने मुझे एक लेसन सिखा दिया कि कभी भी प्लानिंग मत बना के रखो. और आज मैं आप लोगों को उन्हीं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये प्लान किया था कि आप लोग के पास आऊंगा तो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी आल्सो. ओके. Sir, हाँ जी, बोलिए. sir, I got the answer. या आई सॉ योर आंसर. रौनक, संजिता एंड उसके बाद एक क्या नाम है उस लड़के का, ए से जिसका नाम है. ओके. अरुणव. ओके फाइन. काव्या. फाइन, वेरी गुड. So you all are saying that sir the answer will be 36. Okay, चलो ठीक है, majority wins. I will also say that yes the answer will be 36. देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को. अपन ये मान लेंगे let total camels is equal to x. Now according to the question, 1/3 of herd is in forest. तो फॉरेस्ट में कितने गए? फॉरेस्ट में गए x/4. 1/4 of the herd is in forest. ठीक है. उसके बाद क्या था? माउंटेन पे कितने गए? माउंटेन पे थे 2√x. थर्ड थिंग वाज बचे कितने? 15. रेस्ट 15. So now this x will be equal to x/4 plus 2√x plus 15. अब सॉल्व कैसे करें इसको सर? इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. देखो सबसे पहले तो ये x माइनस x/4 कर दो तो ये हो जाएगा 3x/4 will be equal to 2√x plus 15. अब क्या करोगे आप लोग? √x को y मान लो या z मान लो, कुछ भी मान लो. तो x will be equal to y square. So what I will have is 3y square upon 4 is equal to 2y plus 15. अब क्या करेंगे अपन? This will be 3y square will be equal to 8y plus 60. Fine. अब क्या करें सर? 3y square minus 8y minus 60 इक्वल टू 0. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ना डिस्क्रिमिनेंट निकाल के टाइम वेस्ट मत करना. डायरेक्ट ट्राई टू फैक्टराइज इट डायरेक्ट. थोड़ा प्रैक्टिस करो फैक्टराइजेशन वाले मेथड की. यू विल बी एबल टू डायरेक्टली सी द सॉल्यूशन. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिखता, इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेक द नंबर डायरेक्टली, डोंट वेस्ट मोर देन 5 सेकेंड्स ऑन दिस. इस नंबर को देख के और इन दोनों नंबर्स को देख के आई कैन डायरेक्टली से दैट दिस विल बी +10 एंड दिस व्हाट मी आई मीन -18 एंड +10. मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ इसको देख के. बट अगर आप ऐसा देख के नहीं कह पा रहे हो तो कोई बात नहीं, डोंट वेस्ट द टाइम. सो दिस विल बी 3y square minus 18y plus 10y minus 60 is equal to 0. सॉल्व करोगे तो y will be equal to 6 और √x will be equal to 6. अब 10% of the जनता will tell that the number of camels were equal to 6. No, आपने
x माना था, यहाँ पे आपको रूट एक्स की वैल्यू मिली है, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैमल्स विल बी इक्वल टू 36। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे हुआ समझ में आया? से यस और नो? नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करूं? कम ऑन, बोलो यार। सर फिर हाँ से बेटा, एक्सप्लेन करिएगा। क्या एक्सप्लेन करना है बेटा, फिर से बताओ। सर जो सेकंड स्टेप बताया था आपने, सेकंड स्टेप कौन सा भाई? सोहम सान्याल, ओके फाइन, चलो देखते हैं। ये जो इक्वेशन कैसा है ये समझ में आ गया? x प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 15, ये इक्वेशन कैसा है ये समझ में आ गया? इसमें तो अपन ने कुछ नहीं किया, जो डायरेक्टली दिया हुआ है वो कर दिया। अब हमको इससे सॉल्व करना था, तो मैंने रूट एक्स को y मान लिया। तो जब मैंने रूट एक्स को y मान लिया, तो x will be equal to y square. So now my equation will become 3y square divided by 4 is equal to 2y plus 15. अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो you will get two values of y. One value will be equal to 6 and other value को छोड़ दो, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है. You will get two values of y. Of this one value will be equal to 6. जब आपको एक वैल्यू मिल गई 6, तो रूट y क्या था? y was basically root x. So root x equal to 6, which gives me x equal to 36. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। So we'll discuss one more problem. The question is, the denominator of a fraction is one more than twice the numerator. कोई फ्रैक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो द डिनोमिनेटर इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 2 into numerator plus 1. The denominator is 1 more than twice the numerator. उसके बाद क्या बोला है? If the sum of the fraction and the reciprocal, that means numerator upon denominator plus denominator upon numerator is equal to 2 times 216 upon 21. 216 upon 21, अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 42 plus 16, it will become 58 upon 21. So now you have to tell me what will be the fraction. Now you have to tell me what will be the fraction. Sir, it is 2 times. क्वेश्चन रिपीट करिए। 2 times 16 upon 21. 2 16 upon 21, that is 58 upon 21. Okay, sir. The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. Next, full stop. If the sum of the fraction and the reciprocal is 216 upon 21, that is 58 upon 21, you have to tell me what is the fraction. The time allotted for this question is 3 minutes. Because this is a good question, so the time allotted is 3 minutes.
सर सर हमें फाइंड क्या करना है? फ्रैक्शन करना है? यस, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन ही तो फाइंड करना है आपको, और क्या फाइंड करना है? हो गया? हाँ जी, हो गया आप लोग का क्वेश्चन? हाँ सर, क्या आ रहा है आंसर? 3/7, 3/7, 3/7. Kavya is saying 21/31. My God, कैसे भाई? चलो देखो कैसे करेंगे। So let me explain you how you will do this question. देखो भाई, आसान है, टफ है, कैसा है क्वेश्चन, ये तो आप लोग डिसाइड करोगे, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। न्यूमरेटर को अपन x मान लेते हैं, ठीक है? न्यूमरेटर को x मान ले। रुको यार, ये कलर, पेन का कलर चेंज करना, इट्स लिटिल बिट डल। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। न्यूमरेटर को हम लोग x मान लेते हैं, सो डिनोमिनेटर विल बी 2x + 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन इज x upon 2x + 1. Basically they are saying x upon 2x + 1 plus 2x + 1 upon x will be equal to 58/21, ठीक है? अब यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो and solve this quadratic equation, you will get the result. For your hint,
मैं आपको बता दूं कि फाइनल जो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, that you will get here is 11x square minus 26x minus 21 is equal to 0. जो फाइनल जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी 11x square minus 26x minus 21 equal to 0. And from there you can directly solve and you will get two values of x. One value जो आएगी आपकी वो आएगी 3 और एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी. So that negative value you will have to reject. ठीक है, कर लेते इस क्वेश्चन को. देखो करना क्या है, एलसीएम ले लें यहाँ पे. So x square plus 2x plus 1 whole square divided by x into 2x plus 1 will be equal to 58 upon 21. Fine. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ. So it will be x square plus 2x whole square is 4x square plus 1 plus 2 into 2x is 4x whole multiplied by 21 will be equal to 58 into 2x square plus x. इसके बाद आप सॉल्व करना. ठीक है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. Try to solve. If you don't get answer as x equal to 3, then let me know. I will tell you the question. ठीक है, न्यूमरेटर x की वैल्यू आएगी 3 and 2x plus 1 की वैल्यू आएगी 2 into 3 plus 1 which is will be equal to 7. So finally your fraction will be 3 upon 7. जिन लोगों का आंसर आया था उन लोगों ने क्या ऐसे ही किया था और they tried something different? जिन लोगों का आंसर आया है they did like that or they did like this or they tried something different? ऐसे ही किया है. ऐसे किया है ना. हाँ बोलिए. Sir, means we are rejecting the negative value, but means if we solve that one, then we will get a positive fraction. इसको निग्लेक्ट करें बेटा, इसको आप निग्लेक्ट करें. देखो एक वैल्यू, देखो इसमें जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट टू वैल्यूज. वन वैल्यू विल बी x इक्वल टू -7 अपॉन 11. एक आएगी x इक्वल टू -7 अपॉन 11 और एक वैल्यू आएगी 3. तो अपन ने जब x माना था, यहाँ पे लेट द न्यूमरेटर इज x. क्या आपने किसी भी फ्रैक्शन को ऐसा देखा है जिसका न्यूमरेटर हो वो खुद ही एक फ्रैक्शन हो? मैंने तो ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं देखा है. क्या कोई ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर जो है डेट इटसेल्फ इज ए फ्रैक्शन? सर लेकिन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट इज दैट थिंग. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम यही आती है. ये जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू विल सेटिस्फाई योर इक्वेशन. इस वैल्यू से आप पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर आल्सो. दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड आल्सो. बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? टेल मी. नो सर. अगर आपने स्पीड और डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन किया जहां पे आपका स्पीड जो है कैलकुलेट होके निगेटिव आ गया तो क्या करोगे? क्या स्पीड कभी भी निगेटिव होती है भाई? मैंने तो नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो बताओ. Is it practically, can you visualize what you are trying to say? आप एक ऐसे फ्रैक्शन की बात कर रहे हो जिसका न्यूमरेटर खुद ही एक फ्रैक्शन है. खुद सोच के देखो बेटा कि what type of thing you are saying. आप एक ऐसे फ्रैक्शन की बात कर रहे हो जिसका न्यूमरेटर खुद एक फ्रैक्शन है. Is it logical? Just think and tell me. वैसे आपका पॉइंट एकदम सही है कि सर दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं. How on this earth I will know that which value I have to reject and which value I have to accept? मैं कैसे पता करूं?
In that case, you have to go to the basic of the question. वहां से आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू सी व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग. ठीक है, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. फाइन, आई होप आई एम क्लियर. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप आई एम क्लियर इन दैट. लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हैज टू बी समथिंग. चलो मोटर बोट की क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो. ओके, a train बेटा आई डू मेहनत बिफोर कमिंग टू द क्लास. ठीक है, मैं सीधे सीधे क्लास में सिर उठा के नहीं आ जाता. आई डू लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर कमिंग टू द क्लास. इसलिए अगर कोई मेरी क्लास को मिस करता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. आई डू लॉट ऑफ प्रिपरेशन. कभी मौका मिला तो मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा. चलो क्वेश्चन लिखो. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड. कोई ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर की दूरी को एक कांस्टेंट स्पीड से कवर कर रही है. उसके बाद क्या होता है, नाउ द स्पीड इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर. If the speed increases by 5 kilometer per hour, the time taken reduces by 2 hours. The time taken reduces by 1 hour. अगर स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर रही है तो द टाइम टेकन reduces by 1 hour. So now what you have to tell me is what is the original speed. और डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स. So you have to tell me what is the original speed of the train. अब ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत आसानी से होते हैं. ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन. डिस्टेंस है 300 किलोमीटर पर आवर. स्पीड है 5 किलोमीटर. स्पीड जो है पहले x थी, उसके बाद स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो चुकी है. ठीक है, अब हमें जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हुई है तो जो टाइम टेकन है दैट हैज रिड्यूस्ड बाय 1 आवर. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. आप लोग क्वेश्चन करो, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ. This is also a big thing right now. क्योंकि जितना मैं लेस टेक सेवी हूँ उतना ही मेरे को ये काम करना पड़ता है. बस इससे ये होता है कि आप लोगों के पेरेंट्स को पता रहता है कि आप लोग कहाँ हो, क्लास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो करके. हाँ,
फाइन, चलो आंसर्स आई गेस आने लगे हैं। एक ही आंसर है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25. Okay, let me see. I don't know the answer. This time I really don't know the answer. And what will be the new speed? What will be the new speed? Only one student got the answer. Why others are not getting? Are they not trying, or they are fed up with the class, or they think that this question is too elementary? This question is too elementary for them to answer. चलो देखो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ट्रेन की जो डिस्टेंस टोटल जो इन्होंने दिया है वो इन्होंने दिया है 300 किलोमीटर, ठीक है। इनिशियली द स्पीड वाज से x किलोमीटर्स, नाउ द स्पीड हैज बिकम x प्लस 5। अपन जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब स्पीड कम थी तो ज्यादा टाइम लगेगा, जब स्पीड ज्यादा हो गई तो कम टाइम लगेगा। और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर है कि 2 आवर है, कोई मुझे कंफर्म करके बताएगा, इज इट 1 आवर और 2 आवर? 1 आवर। 1 आवर। तो इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस, इन दोनों के जो टाइम का जो डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 1 आवर। सो व्हाट विल हैपन, 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। हाँ ठीक है, 25 और यार नहीं 1 आवर कैसे हो सकता है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? 8 और 4 12, इट शुड बी 2 आवर्स। क्या मैंने 1 आवर बोल दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, वही सर आ नहीं रहा है 1 आवर से। तो मनप्रीत, हाउ यू गॉट द आंसर माय डियर? Manpreet, are you in the class or you have left? चलो देखो, it will be 2 hours only। हाँ, मेरे पास कुछ टाइपिंग एरर है। It will be 2 hours. Yes, it is 2 hours. वो क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था, I rectified. It will be 2 hours। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो दिस विल बी 300 into x plus 5 minus 300 into x should be equal to x into x plus 5। फाइन, when solve, जब आप इसको सॉल्व करोगे 300 into x and minus 300 into x will get cancelled, so 300 into 5 will be equal to 1500 will be equal to x into x plus 5। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1500 will be equal to 0। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सर वो आपने इंटू 2 नहीं किया। इंटू 2 नहीं किया, हाँ इंटू 2 नहीं किया, ठीक है। तो इंटू 2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाओ देखो, x 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप क्या करोगे, 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 300 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फाइन, सो यहाँ से व्हाट यू विल गेट हियर इज 300x and minus 300x will get cancelled, so it will be 300 into 5 will be equal to 2 into x square plus 5x।
Now what will happen is this will get cancelled. This will become 150. X square plus 5x minus 750 is equal to 0. ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get two values. X square plus 30x minus 25x minus 750 will be equal to 0. X into x plus 30 minus 25 into x plus 30 will be equal to 0. अब देखो, अब यहाँ से दो वैल्यूज आई, x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू माइनस 30. दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सॉल्व करके आ रही है, लेकिन एक वैल्यू को आपको जुडिशियसली सेलेक्ट करके जीरो करना पड़ेगा, निग्लेक्ट करना पड़ेगा. किस वैल्यू को आप निग्लेक्ट करोगे? -30 को आप निग्लेक्ट करोगे बिकॉज स्पीड इज नॉट -30. -30 रखने से भी आंसर आएगा, -30 रखने से भी जो आपका टाइम आएगा उसका टाइम डिफरेंस 2 आएगा. क्योंकि ये जो चीज है ना बेटा, दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन. This is a mathematical equation. It is not understanding the limitations of the equation. ये इक्वेशंस की लिमिटेशन नहीं समझ रहा. यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि x कैन नेवर बी लेस देन 0. x इज नॉट लेस देन 0. ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, ये लिमिटेशन होती है और यही डिफरेंस आता है जब आप मैथमेटिक्स को प्रोग्रामिंग वगैरह जब आप बनाते हो, प्रोग्राम्स जब आप बनाते हो कंप्यूटर में, यही चीजें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है और इसी का आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन वेयर इनिशियल स्पीड वाज 25 किलोमीटर्स, vi is 25 kilometers and vf will be equal to 30 kilometer per hour. This is how you were required to solve this question. ठीक है, चलो next turn पे we will read something. Either we will discuss the questions or I will start the next topic. आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करते रहना. इस वीक आप लोग की एक डाउट क्लास भी है, तो in that doubt class we will discuss the questions. ठीक है, till then